it detects acetoacetate, ठीक, Gerhardt's test, but in presence of phenyl ketones, as seen in phenyl ketonuria, the observation is greenish, which on time turns yellow on standing. ये याद रखना. नॉर्मल ऑब्जर्वेशन तो क्या होता है, वॉयलेट टू रेडिश कलर आता है एसिटो एसिटेट अगर है तो, ठीक. लेकिन अगर वो ग्रीनिश और येलोइश टिंज आ रहा है, if you are getting that observation, that means danger is there. मतलब violet reddish is normal for acetoacetate, but if you are getting that greenish tinge which on standing in few minutes converts to yellow, that means it is due to presence of not acetoacetate but phenyl ketones. कौन से? phenyl ketones. And excretion of phenyl ketones is a characteristic feature of PKU, phenyl ketonuria. Excretion of phenyl ketones. याद रखना बेटा, गेरहार्ड्स टेस्ट शायद यहाँ पे ना पूछा जाए, लेकिन PKU में 100% आएगा ही आएगा. Gerhardt's test is very important. Then second, what is the normal range of ketone bodies in blood? बोलो. Normal range of ketone bodies in blood. Up to 1 mg per dl. बेटा m stands for milli. माइक्रो का वो होता है ना म्यू, जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड वाला वो कोफिशिएंट होता है, वो वाला वो होता है म्यू. mg stands for milli. ठीक है, am I clear? माइक्रो और मिली में क्या फर्क होता है? अप टू वन mg पर dl, अप टू 1. हो सकता है जीरो, क्लोज टू जीरो हो, अप्रोचिंग टू जीरो. एग्जैक्ट जीरो तो कभी भी कुछ नहीं होता. हो सकता है इट इज वेरी क्लोज टू जीरो, हो सकता है इट कैन बी 0.99. बोथ वैल्यूज आर नॉर्मल एंड एनी वैल्यू इन बिटवीन इज आल्सो नॉर्मल. क्या देख रहे हैं नीचे? बेटा बंद कर दे इसे. नेम अ फ्यू रिड्यूसिंग शुगर्स. तो बेटा नाम बताओ ना उनके. गुड. यस, गुड, वेरी गुड. और ग्लूकोज की बहन का नाम क्या होता? चचेरी बहन. बोलो. फ्रक्टोज. फ्रक्टोज कौन सा? इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर. फिर और बोलो. ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और रिड्यूसिंग शुगर्स के नाम बोलो. नो कैजुअल डिस्कशन. और बोलो. एक दो और बोला यार, तो सबसे सिंपल चीज होता है, सबसे सिंपल चीज. लैक्टोज, माल्टोज, पेंटोजेज, लाइक होता है ना राइबुलोज. These all are reducing sugar. These all are reducing sugar. Why sucrose is non-reducing? Sir, sucrose molecule due to the structure. Explain. What is that in that structure that it is non-reducing? बेटा अब इतने पे मार्क्स नहीं मिलेंगे. That sucrose is non-reducing. You have to back your point with a proper explanation. बेटा can you explain? Sir, in sucrose, both the two monomer glucose and fructose, both the aldehyde and ketone group are making the glycosidic bond. So that's why there is no free group. So it's counted. Good. Good.
देखो रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, इन विच देयर इज अ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट which can give that positive Benedict test reaction. But in sucrose, what is happening? The glycosidic bond is involving both aldehyde group of the glucose and keto group of the fructose. ठीक है? Both are involved in bond formation. That is when neither group is free and hence there can be no reaction. Sucrose has N-glycosidic bond or O-glycosidic bond? Sucrose and glycosidic. O-glycosidic bond. याद रखना, ये मत भूलना कभी भी, because it is involving oxygen. Whenever we'll be talking about nucleotides or proteins or amino acids and a glycosidic bond is involved there, we'll have N-glycosidic bond. ठीक है? ये आगे आएगा, don't worry बेटा. When you will have that nucleotide chemistry, it will be there. जहाँ पढ़ोगे पहले पेंटोस शुगर, then nitrogenous base along with phosphate group, तो बनता है ना बेटा न्यूक्लियोटाइड, उसमें रहेगा. ठीक है? You will be seeing that thing there. Now let's focus on a bit clinical part. ठीक? न्यू ईयर पे थोड़ा थोड़ा क्लिनिकल पार्ट भी शुरू करते हैं. A person, if a person is diabetic, listen to it very carefully. If a person is diabetic, can he give a negative, can his urine sample give negative Benedict's test? सोच के जवाब देना. Let us say if any person XYZ is diabetic, can his urine sample give negative Benedict's test? Explain why. अरे मैं तो कह रहा हूँ नेगेटिव है टेस्ट, फॉल्स पॉजिटिव क्या कह रहा है? फॉल्स नेगेटिव क्या होता है भाई? फॉल्स नेगेटिव क्या होता है? फॉल्स नेगेटिव तो कुछ भी नहीं होता भाई. सबसे पहले बताओ, उसने ठीक बोला कि can the reducing sugar, or I should say the Benedict test, can be positive or negative if a person is diabetic? Can it come negative? It should be positive. Sir, because beta hydroxybutyrate is hard to detect. ठंड में दिमाग भी थोड़ा थोड़ा जम गया है, धूल के साथ साथ इस पे बर्फ भी लग गई है. अबे बेनेडिक्ट टेस्ट बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट के लिए होता है, किसके लिए होता है? Since it is diabetes, so presence of glucose body. करना चाहोगे ट्राई? बोलो. It is not mandatory. बोलो. अरे मोर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होगा तो टेस्ट पॉजिटिव आ ही जाएगा. मैं तो कह रहा हूँ टेस्ट नेगेटिव है. ऐसा ये चमत्कार कैसे हो रहा है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड टू बेसिक थिंग्स. दो बेसिक चीजों पे आपका ध्यान होना चाहिए. फर्स्ट वन, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज? I am asking fasting plasma glucose normal value. 70 to 110. क्या? बिना यूनिट के कोई आंसर रिपोर्ट मत करना बेटा.
यूनिट गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उसका फिर भी एक एक्सक्यूज मिल जाएगा। बिना यूनिट के आंसर इज आर्बिट्रेरी, उसका कोई मतलब नहीं होता बेटा। 70 to 110 क्या, अब आप मिलीग्राम कह रहे हो, ग्राम कह रहे हो, किलोग्राम कह रहे हो, मुझे थोड़ी पता चलेगा। 70 to 110 mg/dl। अब इस चीज को पकड़ के रखना बेटा, यानी कि जितने भी नॉन डायबिटिक लोग हैं, विच आर नॉर्मल पीपल, जिनका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नॉर्मल है, देयर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज will be somewhere between 70 to 110 mg/dl. Up. There is something called transport maximum, or renal threshold of reabsorption in kidney or for nephrons. अब renal threshold क्या होता है? It is that concentration of any metabolite. ये सबके लिए अलग अलग होता है बेटा, सबके लिए, जिसके लेवल ब्लड में एक सर्टेन अमाउंट तक होता है, लेकिन उसके ऊपर किडनी उसे रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाती। मीनिंग if the concentration of a metabolite is up to the renal threshold, it will be completely reabsorbed. But if it goes above the renal threshold, it won't get reabsorbed by the nephrons. और जब nephrons उसे reabsorb नहीं कर पाएंगे, it will start to come in urine. अब खुद सोचो, जो बंदा डायबिटिक है, क्या है? अच्छा, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम पता कितना होता है और रीनल थ्रेशोल्ड कितना होता है पता? 180 mg/dl। यस। अब 2 और 2 4 करो बेटा। नॉर्मल फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज कितना था? 70 to 110। लेकिन हमको पता है कि जो बंदा डायबिटिक है उसका 110 से तो ऊपर ही होगा, हो सकता है 130 हो, 140 हो, 150 हो। But up to 180 everything will be reabsorbed. Up to 180 everything will be reabsorbed. Even if it is 165, 170, 175 also, the Benedict test would be negative because there is no reducing sugar in urine, because everything is getting reabsorbed by the kidneys. If the fasting plasma glucose exceeds the 180 mark, let us say it has become 200, 210, होती है इतनी भी फास्टिंग बहुत लोगों की होती है, जिनकी बहुत प्रोलॉन्ग डायबिटीज होती है, बहुत खराब कंडीशन होती है, मिलती है इतना, then up to 180 it will be reabsorbed, but the upper 20, 30 ऊपर जितना भी वैल्यू आ रहा है बेटा, that starts to come in urine and this will give positive Benedict's test. Remember this thing. तो ये चमत्कार ऐसे होता है, because up to 180 mg/dl everything will be reabsorbed by the nephrons, by the kidney. इस चीज को याद रखना। तो कभी मान लीजिए किसी का हिस्ट्री में डायबिटीज है और आप मतलब उसका बेनेडिक्ट टेस्ट लगा रहे हैं, इफ इट इज कमिंग नेगेटिव, तो उसे लेकर वार्ड में घूमते मत रहना, अरे गलत हो गया। होता है बेटा, होता है। ये इससे ये पता चलता है दैट हिज ग्लाइसेमिक कंट्रोल इज गुड, उसका डायबिटीज पे कंट्रोल अच्छा है, तभी 180 से नीचे है। Second, one more important thing regarding Benedict test and diabetes. Diabetes is the most common associated clinical disorder with positive Benedict test. ठीक है, बाकियों पे भी धीरे धीरे करके आते हैं। आज का क्लास का पर्पस सिर्फ यही है कि आज थोड़ा थोड़ा क्लिनिकली ओरिएंट आपको करते चले जाए। टेस्ट तो वहाँ पे लगा लेना, 50 बार लगाए लिए। You should also start discussing clinical cases also. What is the diagnostic criteria of diabetes in terms of fasting plasma glucose? यानी किसी का फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज देख के या कैसे देख के आप बता सकते हैं that a person is diabetic or not? बोलो। लेट अस से आपके पास कोई रिपोर्ट आई और उसकी फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज की वैल्यू, आई एम गिविंग यू 2 रिपोर्ट्स। एक फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज की वैल्यू है बेटा 130 और दूसरे की वैल्यू है बेटा 100। आप कैसे कहोगे कौन सा डायबिटिक है और कौन सा डायबिटिक नहीं है? बोथ आर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, बोथ आर ऑफ डिफरेंट पेशेंट्स। बोलिए।
कैलकुलेट क्या करना है इसमें, बोलो कौन सा डायबिटिक होगा कौन सा डायबिटिक नहीं होगा. One person X is having fasting plasma glucose of 100, let us say 100, and person Y is having fasting plasma glucose of 130. Which one would be diabetic? 130. Why? इसीलिए बेटा नॉर्मल रेंजेस सारे साल याद कराई जाती है. नॉर्मल रेंज क्या होती है फॉर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज? इट इज 70 to 110, 70 to 110 mg per dl. पर्सन एक्स इज क्लियरली फॉलिंग इनटू दैट रेंज. ठीक, तो हम तो उसे तो रूल आउट कर देते हैं. ठीक है, हो सकता है रात को बहुत हेवी कार्बोहाइड्रेट मील ली हो, या हो सकता है सुबह भी कई बार होता ना, गलती से आदमी आदत में एक कप चाय पी ही लेता है. नॉट अ प्रॉब्लम. But 130 raises some flags. It is above the normal range. It is above the normal range. But the catch is, we can still not classify him as diabetic. अभी भी हम उसे डायबिटिक नहीं कह पाएंगे, लेकिन हम उसे सस्पेक्शन में रखेंगे. And to clear that suspicion, what we'll do? We will call that person again to give fasting plasma glucose sample once again. आफ्टर 24 आवर्स, मिनिमम 24 आवर्स. दोबारा कभी भी बुला लीजिए एज पर द पेशेंट्स और द क्लिनिक्स कन्वीनियंस, लेकिन मिनिमम 24 आवर्स का गैप होना चाहिए. 24 आवर्स दोबारा उससे फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज का ही सैंपल लीजिएगा. देखिए, फास्टिंग प्लाज्मा को फास्टिंग प्लाज्मा से ही कंपेयर कीजिएगा, उसको रैंडम या पोस्ट प्रेंडल से कंपेयर मत कीजिएगा. इट विल बी ब्लंडर. ठीक है, कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स ओनली. If this time his fasting plasma glucose comes 135, 140, 129, which is still above that fasting plasma glucose range, we call him diabetic. और इसमें एक एग्जैक्ट नंबर होता है. एक्चुअली फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज का भी नंबर नहीं होता. द एग्जैक्ट नंबर इज दिस. इसके ऊपर अगर होता, why I am taking 130 specifically, the number is this. (126 mg per dl). If on two separate occasions, remember, if on two separate occasions, दो separate occasions पे, if the fasting plasma glucose, कौन सा, is more than or equal to 126 mg per dl, then the person is diabetic. और two separate occasions, बेटा याद रखना. ऐसा नहीं कि एक बार आपने देखा FPG 130 आ रहा है तो कहते नहीं जी आप तो डायबिटिक है. नो, मशीन में भी एरर होता है. देयर आर पिपेटिंग एरर आल्सो. देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स आल्सो. इफ द पर्सन इज वेरी एंशियस, एक टेम्पररी स्पाइक आ सकता है. ब्लड देते टाइम भी तो बेटा एंजाइटी होती है. दैट कैन बी अ टेम्पररी स्पाइक आल्सो इन फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज. याद रखना. दैट इज व्हाई वी टेक टू सेपरेट ओकेजन्स. कितना? टू सेपरेट ओकेजन्स. और टू सेपरेट ओकेजन्स भी इट शुड इंक्लूड अ गैप ऑफ मिनिमम 24 आवर्स. ऐसा ना हो कि एक सैंपल आपने सुबह ले लिया, चलो एक दोपहर में वापस चेक कर लेते हैं. नो, दैट वुड बी कंप्लीटली इनकरेक्ट. तो ऐसे डायबिटीज बेटा डायग्नोस होती है और सर्टिफाई होती है व्हेन फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज इज मोर देन 126 mg per dl और 126 और मोर. समझ आई बात? अब 111 से 125 को क्या कहोगे बेटा? यस, क्या कहेंगे? प्री डायबिटीज. क्या कहेंगे? प्री डायबिटीज. क्या बोलेंगे? प्री डायबिटीज. गुड. प्री डायबिटिक पेशेंट्स शुड बी केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट ग्लाइसेमिक कंट्रोल and very precise monitoring. Their lifestyle should be very well monitored because they are at the highest risk of developing full blown diabetes, especially in women. खास तौर पे वो एज ग्रुप which are in the child bearing age, क्योंकि इनमें क्या होता है, at certain stage many women develop when they are pregnant gestational diabetes which is completely normal and transient. चाइल्ड बर्थ के बाद बेटा वो खत्म हो जाता.
लेकिन जिनमें ये चीज मॉनिटर नहीं की जाती प्रॉपरली बेटा, उनकी जेस्टेशनल डायबिटीज आगे जाके फुल ब्लोन डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। इफ दे आर प्री डायबिटिक, they are at very high risk. And diabetes, once if you are in that category, as of today while we are talking, there is nothing to reverse that. चलो एक और बात पूछते हैं, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है but still you should know this thing. How many of you think diabetes is genetic? कितने लोग मानते हैं? तुम नहीं मानते? क्या लगता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप सब लोग सही मानते हैं. Still idiopathic, but a lot of reasons are related to genetic makeup. जैसे होता है ना, किसी के दादा दादी को बेटा डायबिटीज होती है, तो आगे मान लो उनके 4 बच्चे हुए, तो 4 में से 2 भी आगे जाकर डायबिटीज डेवलप कर सकते हैं. उनके आगे बच्चे हुए एंड दे मैरिड समवन हु इज इन बिलोंगिंग टू फैमिली ऑफ डायबिटिक केसेस, तो आगे उनके बच्चों में बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है दैट दे कैन बिकम और डेवलप डायबिटीज. याद रखना इस चीज को. चलो अगला टेस्ट आता है. द नेक्स्ट वाज, अभी तो रिड्यूसिंग शुगर की बात हुई, नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट वाज प्रोटीन. क्या? प्रोटीन. Sir, in the subsequent test, if his blood glucose comes in the normal level, फिर हम उसको सब्सिक्वेंट टेस्ट कौन सा? that सब पहले हमने सस्पेक्ट किया था कि 130 mg per day. हाँ. And we'll do the test again. हाँ. Then 110 आ गया, लेट अस से 105 आ गया, yes, अगर रेंज में आ गया, रेंज में आ गया, देन तो we'll consider वो him- temporary spike or any other physiological, or you can say it can be on certain medications also that can alter that thing, that will be discarded off. That will be discarded off. देखो नॉर्मल रेंज क्या होती है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज का? 70 to 110. एंड क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग डायबिटीज क्या है बेटा? 126 और अबव फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज ऑन 2 सेपरेट ओकेजन्स. तो बीच में गैप बच गया ना बेटा 111 से 125 का. दैट कंडीशन इज प्री डायबिटिक कंडीशन. यानी कि यू हैव नॉट डेवलप्ड डायबिटीज बट योर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज इम्पेयर्ड. अगर प्रॉपर होता तो बेटा शुगर लेवल 110 से नीचे आता, लेकिन अभी 110 के ऊपर है और थोड़ा सा है, दैट मीन्स इट इज स्लाइटली इम्पेयर्ड. इट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड. होता ना, जैसे गाड़ी का टायर पंचर हो गया, पर ठीक है ट्यूबलेस टायर है चल जाएगा, लेकिन टायर तो ठीक करवाना पड़ेगा ना, वैसे ही. नाउ द नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट प्रोटीन. नेम द टेस्ट फॉर प्रोटीन्स बेटा जो लगाते हैं. यस, गुड. और बीटा हाइड्रोक्सी कहां से आ गया भाई इसमें? मैं तो टेस्ट का नाम पूछ रहा हूं. फर्स्ट वन इज हीट कोगुलेशन टेस्ट, करेक्ट. एक टेस्ट का नाम और बताइए, 3 पढ़ाए हैं बेटा. आप बोलो. गुड. सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट. तीसरा पता? हेलर्स नाइट्रिक एसिड टेस्ट. हेलर्स नाइट्रिक एसिड टेस्ट. Of these, only 2 will be performed in lab. One is heat coagulation, second is sulfosalicylic acid test. Now, which will be the most common protein found in urine in case of proteinuria? क्योंकि with heat coagulation test or sulfosalicylic acid test, we are essentially detecting proteinuria. Now, which will be the most common protein detected in urine? क्यों नहीं पता? पता होना चाहिए था बेटा. एल्ब्यूमिन. कौन सा? एल्ब्यूमिन. याद रहेगा पक्का?
सच्ची? वाई एल्ब्यूमिन बेटा? Why only albumin? There are three more major classes of proteins which are globulin, fibrinogen, prothrombin, but they are not commonly seen. Albumin is the most common. Why? ठीक है, that is a small reason but not the major reason. ठीक है, थोड़ा सा और निशाना ठीक करो बेटा, you are on track. Yes, exactly. Exactly, the size of the albumin, it is almost similar to the slit pores in glomerulus. The size of the albumin is almost similar to that of slit pores in glomerulus. जहां से बेटा फिल्ट्रेशन होता है, क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है. आप ये समझ लीजिए कि एल्ब्यूमिन एग्जैक्टली फिट्स इनटू दैट स्लिट पोर. और आपको पता होना चाहिए कि यूरिन उसमें कैपिलरीज में, आई शुड नॉट से यूरिन बेटा, प्लाज्मा और ब्लड, इट इज फोर्स विद अ डिसेंट प्रेशर. बहुत ठीक ठाक प्रेशर से बेटा वहां पे फिल्ट्रेशन होता है. बट डिस्पाइट दैट प्रेशर, डिस्पाइट दैट साइज कंपेरेबिलिटी, एल्ब्यूमिन स्टिल डजंट पासेस इनटू यूरिन. व्हाई? यानी कि एक तो एल्ब्यूमिन का साइज भी दरवाजे जितना ही है, ऊपर से पीछे भीड़ उसे धक्का भी लगा रही, लेकिन वो फिर भी नहीं जा रहा. क्यों? यस, एग्जैक्टली. रिमेंबर द बेसमेंट मेम्ब्रेन. कौन सी? बेसमेंट मेम्ब्रेन, which is the filtration membrane of the glomerulus or nephron, that is causing the ultrafiltration, जहां से filtration हो रहा है बेटा. और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी होती है पता? द कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन. कौन सा? कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन. जो कैपिलरीज की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, दैट इज ओनली एक्टिंग एज द अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. कैसे? नेगेटिवली चार्ज्ड. एंड सो डज द एल्ब्यूमिन. एंड सो डज द albumin. So despite they are having the comparable size, despite there is pressure inside the glomerulus, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? glomerular hydrostatic pressure. ये आगे पढ़ना बेटा फिजियो में आराम से. Despite having that GHP, the pressure, it is still not coming out in urine in normal conditions because of charge repel. और इतने में ही बेटा वो आगे ट्रेवल कर जाता है, so that it does not comes in urine. Now, what happens in long-standing diabetes? Not imminent diabetes, बेटा long-standing diabetes. 5 साल 10 साल जिनको diabetes हो जाता है, उसमें क्या changes होता है? Slowly and steadily, the basement membrane loses its negative charge. The basement membrane loses its negative charge because it gets glycosylated. It gets glycosylated. It loses its negative charge. अब जब negative charge गया, then we are having a lot of albumin passing in urine. A lot of albumin passing out in urine, causing proteinuria. Causing proteinuria. Now there were 3 types of proteinuria बेटा. किसको पता है? बोलो, types of proteinuria. नहीं. टाइप्स ऑफ प्रोटीन्यूरिया बेटा. आप बोलिए. कॉज. हाँ बोलिए. ग्लोमेरुलर प्रोटीन्यूरिया. हाँ, उनको कॉजेस को उस पे तो वो किया गया है बेटा, क्लासिफाई. ग्लोमेरुलर प्रोटीन्यूरिया, ट्यूबुलर प्रोटीन्यूरिया एंड देन ट्यूब्यूल के बाद क्या आता? अरे दे आर ऑल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन बेटा. तो उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिंग डक्ट और आगे वो सब तो किडनी से बाहर निकल गया ना.
नाउ वी आर अप्रोचिंग गोइंग आउटसाइड ऑफ द किडनी, तो वो सब क्या बनाता है बेटा मिलकर, यूरेटर नहीं बनाते, तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट रीनल। हाँ देखो रीनल मीन्स किडनी। अब जैसे जैसे इनिशियल पार्ट क्या है बेटा नेफ्रॉन का, ग्लोमेरुलस, नीचे है क्या आया, ट्यूबुलर पार्ट। अब जब वहां से उसको गुड बाय बोल के बाहर निकल रहे हैं तो क्या आ रहा है बेटा, पोस्ट रीनल पार्ट आ रहा है। ठीक है, याद रखना बेटा इन तीनों को। इसका क्लासिफिकेशन तो सबसे इजी होता है, ग्लोमेरुलर, ट्यूबुलर, पोस्ट रीनल। These are the three types of proteinuria, and there is one more sub classification of glomerular proteinuria called orthostatic proteinuria। कौन सा, orthostatic proteinuria, commonly seen in adolescents। किनमें, adolescents होता है ना बेटा, 10 से 17-18 साल के जो लोग होते हैं वो। ठीक, थर्ड एंड द लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट एज ऑफ नाउ इट इज कीटोन बॉडी। कौन सा, कीटोन बॉडी। What is the precursor of ketone body? वो तो कीटोन बॉडी है, वो तो कीटोन बॉडी। मैं पूछ रहा हूँ कीटोन बॉडी बनता किससे है बेटा, नो। एसिटाइल कोएंजाइम है। In normal physiological conditions, what are the precursor of generating acetyl coenzyme है, किससे बनता है बेटा एसिटाइल कोएंजाइम है, पायरुवेट किससे बनता है, ग्लाइकोलाइसिस। अब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में कैसे बनता है बेटा, ये एक्सप्लेन करो। ऑक्सीडेटिव, गुड, ऑक्सीडेटिव decarboxylation, good, by removal of one CO2 molecule, by removal of one CO2 molecule, oxidative decarboxylation। ऑक्सीडेटिव decarboxylation। नॉर्मली पायरुवेट से हमें एसिटाइल कोएंजाइम मिलता है, याद रखना इस चीज को, एंड दैट इज व्हाई इट्स लेवल इज क्लोजली मॉनिटर्ड, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं लिंक बेटा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से आता है। क्यों, बिकॉज कीटोन बॉडी का प्रीकर्सर क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम है, और एसिटाइल कोएंजाइम का प्रीकर्सर कौन होता है, पायरुवेट, और पायरुवेट किससे बनता है, ग्लूकोज से। किससे, ग्लूकोज से। Which all ketone bodies will be detected by Rothera's test? The Rothera test कौन कौन सी कीटोन बॉडीज को डिटेक्ट करता है, आउट ऑफ द 3, तीनों में से। Acetoacetate and acetone, because beta hydroxybutyrate is a false ketone body, beta hydroxybutyrate is a false ketone body। उसमें कीटो ग्रुप नहीं होता, किसमें, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट में, it does not have a keto group, it is a false ketone body। लेकिन याद रखना बेटा ये false ketone body बॉडी में सबसे ज्यादा होती है, अराउंड 65 to 70%, ऐसे अप टू 70% नॉर्मल लेवल्स। देन 20 to 25% क्या होता है बेटा, एसिटोएसिटेट, और 5 से 10% वेरी करता रहता है बेटा, 5 to 10% it is around acetone। Why acetone is so less? Common sense लगा, why acetone is so less in body?
बेसिक कॉमन सेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। एक्सक्रीट आउट तो हो रही है, वो तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कैसे? बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। इंजीनियर साहब सोचिए। सर शायद रीयूज होता है because of our volatility. यस एग्जैक्टली, एसीटोन इज वेरी वॉलेटाइल। एसीटोन इज वेरी वॉलेटाइल। जो बहुत वैसे ड्रिंकर्स होते हैं, मतलब जो क्रॉनिक अल्कोहलिक होता है बेटा, उनकी ब्रेथ कभी देखिए, इट हैज अ वेरी फ्रूटी स्मेल समटाइम्स, बहुत फ्रूटी स्मेल होती है बेटा। खैर अभी तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जैसे जैसे क्लिनिकल एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना देखोगे, फ्रूटी स्मेल होती है। वाई? बिकॉज दैट दे आर जनरेटिंग अ लॉट ऑफ कीटोन बॉडी, उसमें एसीटोन का नंबर भी बहुत ज्यादा होता है, एंड इट इज एक्टिवली रिमूव्ड वाया लंग्स बिकॉज एसीटोन इज वेरी वॉलेटाइल। इसीलिए तो हम उसे ढाक के रखते हैं बेटा। जो बीकर हम आपको देते हैं उसकी स्मेल आप सबने देखी हो, कितना अच्छा सा स्मेल होता है। वी आर यूजिंग एसीटोन ओनली, और कुछ नहीं डालते, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, एस्टोस्टेट, ये सब नहीं डालते। वी आर ओनली यूजिंग एसीटोन एंड इट इज वेरी वॉलेटाइल। इस चीज का ध्यान रखना। केरहार्ट्स टेस्ट भी हो गया आप लोगों का। देन हाँ, टेल मी द कंपोजिशन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। sodium Whenever you are asked the composition of Fehling solution, although it's an obsolete question, no one will ask, but be prepared for anything. ठीक? First of all, you should tell that Fehling solution consists of two equal solution, Fehling solution A, Fehling solution B. यानी कि अगर आपको 10 ml Fehling solution बनाना है तो आपको 5 ml Fehling solution A डालना है और 5 ml Fehling solution B डालना है। Now tell the composition of Fehling solution A में क्या है और B में क्या है। क्या लगता है A में क्या है? गुड, वेरी गुड। KOH B में है बेटा। First two are in Fehling solution A and Fehling solution B contains KOH। याद रखना, बेनेडिक्ट का और फेलिंग का दोनों का कंसेप्ट एक ही होता है, दैट रिड्यूसिंग शुगर इन हॉट एल्कलाइन मीडियम, forms enediols which reduce cupric ion to cuprous ions। बस दोनों का पर्पस सेम होता है, बस फर्क कितना होता है कि बेनेडिक्ट में एल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? Sodium carbonate, yes, and here we are using KOH। कौन सा? KOH। remember this thing, this is the basic difference। any queries? सर वो सेम प्रिंसिपल क्या था सर, रिड्यूसिंग शुगर इन हॉट alkaline medium लिखा नहीं था बेनेडिक्ट में? वही है, hot alkaline medium and enediol formation। forms enediols। these enediols are strong reducing agent which converts or which reduces cupric ions to cuprous ions। याद रखना इन चीज को। and what is the PPT which settles down? what is the name of that PPT? good, cuprous oxide। हाँ वो बताया था HOD सर ने उसे। हाँ yes, cuprous oxide, remember। छोटी छोटी चीजें ऐसे याद रखना and try to interact with senior faculty while in lab also।